خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو میری طرف سے اور خدا کے بندہ ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کی طرف سے، جو کہ CEO ہیں فیتھ ٹی وی کے، اور فیتھ ٹی وی کی ساری ٹیم کی طرف سے ہیپی ریزوریکشن ڈے، قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ ہم قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن بڑی فتح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور آج اسی ٹاپک پر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر سلاس جان صاحب، جو کہ دی ہیون فاؤنڈ چرچ کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اور پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کی ساری خدمات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پادری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ گاڈ بلیس یو۔ سو ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کے خوبصورت ٹاپک عید قیامت المسیح کے تعلق سے ہم بات چیت کریں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے، اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری اس بڑی فیور کے لیے کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم باہم مل کر قیامت المسیح، جو کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ خداوند، ہم چاہتے ہیں تیرا ہاتھ ہم پر بڑھے، تیری وزڈم خداوند ہم پر آئے، تاکہ خداوند جو کچھ ہم ڈسکس کریں دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے وہ باعث برکت ہو، اور یہ حقیقت ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے۔ اور یقیناً جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ خداوند یہ بابرکت گفتگو ہو اور تیرے لوگوں کے لیے باعث خداوند نجات ہو، اور خداوند خدا یہ سچائی ان کی زندگیوں کو آزاد کرنے کا باعث ٹھہرے۔ ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر، خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو ناظرین، آج ہم عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بڑا ہی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، اور اسی تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں۔ اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے پرانے عہد میں بہت ساری پیش گوئیاں موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے تعلق سے بھی بڑی پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے، یعنی قیامت کے تعلق سے، پرانے عہد نامے کی کون سی پیش گوئیاں ہیں، اور قیامت المسیح کون سی پیش گوئیوں کی تکمیل ہے؟ جی بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور یہ خوبصورت سوال ہے۔ اور خدا کے کلام کی یا خدا کی جو ایک بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں ایک بڑا تسلسل پایا جاتا ہے، اور بیشتر اس سے کہ خدا کوئی کام بھی کرے، خدا اپنے لوگوں پر وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس تناظر میں بھی خدا نے ہزاروں سال پہلے بھی ان ساری چیزوں کو ریویل کیا مختلف طریقوں سے، اور خاص طور پر جتنے نبی آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ مسیح کی قیامت کے تعلق سے بیان کیا اور کچھ نہ کچھ پیش گوئی کی۔ اور ہم ساری تو اس پروگرام میں کور نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک پیش گوئیوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کون سی پیش گوئیاں ہیں، اور ہمارے پاس پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم 16واں زبور دیکھیں اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت پیش گوئی ہے جو مسیح کے جی اٹھنے میں پوری ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح سے یہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم عیسائیہ نبی کا صحیفہ دیکھیں، اس کا 53 باب دیکھیں، اور اس میں مسیح کو ایک مرد غمناک کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم 53 باب اس کی 10 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، پس جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی
اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر نہ صرف ہم اس کے مرنے کا ذکر دیکھتے ہیں بلکہ لکھا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ جب خدا اسے کچلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے دوبارہ مردوں میں سے زندہ بھی کرے گا اور اس کی عمر کو دراز کرے گا، اور خداوند کی مرضی جو ہے وہ اس کی زندگی میں پوری ہوگی۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت پیش گوئی ہے، اور مسیح نے بذات خود یونا نبی کا حوالہ ہمیں دیا کہ ایک بڑا نشان، جس طرح یونا نبی 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، مسیح نے کہا کہ تمہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ تو مسیح نے بذات خود بھی اپنی قیامت کے تعلق سے بارہا پیش گوئی کی، اناجیل میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعداد حوالہ جات اور پیش گوئیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان پیش گوئیوں کی الہی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں 3 خاص باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیش گوئیوں کی تکمیل ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ آمین، خدا آمین، سچا ہے، praise خدا جو God۔ کہتا ہے چاہے وہ ہزاروں سال بعد ہی پورا کیوں نہ ہو، وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ یسوع واقع ہی وعدہ کیا ہوا مسیحا تھا، جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا وہی وہ مسیحا ہے۔ اور تیسری الہی سچائی اور اہمیت اس میں یہ ہے کہ موت اور گناہ پر اب خدا کی فتح ہو چکی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہمیں پہلے سوال کا جواب دیا، قیامت المسیح کے تعلق سے جو پیش گوئیاں بائبل مقدس میں موجود ہیں، خدا کے خادم نے ان کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پادری صاحب کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کچھ بھی حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم خداوند کی پیدائش کی بات کریں، اس کے دکھ اٹھانے کی بات کریں، اس کی مصلوبیت کی بات کریں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کریں، تو آلریڈی بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے ہزاروں سال پہلے یا کئی سو سال پہلے جو ہے وہ پیش گوئیاں کی گئیں۔ ہم اس ٹاپک میں آگے بڑھیں گے، اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا دوسرا سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو، تو وہ تقریباً 3 سال تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت المسیح کے بعد جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ پھر شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ تو کیا وجہ تھی کہ وہ شاگردوں پر ظاہر ہوئے، یا شاگردوں پر دوبارہ ظاہر ہونا جی اٹھنے کے بعد کیوں ضروری تھا؟ جی بھائی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کا شاگردوں پر ظاہر ہونا مسیحی الہیات میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ صرف مسیح کا معجزانہ ظہور نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا نجات بخش منصوبہ بھی ہے، اور اس کے پیچھے گہری باتیں بھی پوشیدہ ہیں، جن میں سے ہم 5 باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات کہ جب مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوا تو مقصد یہ تھا کہ قیامت کی حقیقت کو ثابت کیا جائے کہ قیامت جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ جیسے ہی مسیح جی اٹھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری دنیا تھی یا مذہبی دنیا تھی یا حکومتی اہلکار تھے، وہ اس بات سے شدید شش و پنج میں تھے، اور جو فریسی تھے شرح کے عالم، وہ اس بات سے ڈر گئے تھے، پیسے بھی کھلائے گئے کہ اس بات کو دبایا جائے، اور ایک الگ قسم کا پروپیگنڈا تیار کیا جائے کہ شاگرد جو ہیں وہ اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف شاگرد بھی طز بزب کا شکار تھے۔ کچھ لوگ جب مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا، شاگردوں میں سے بہت سارے لوگ مسیح کو چھوڑ گئے اور ایمان میں وہ ڈاواں ڈول دکھائی دیے۔ تو مسیح بذات خود یہ چاہتا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور بارہا مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس کے متعلق تعلیم بھی دی، لیکن اس وقت مسیح چاہتا تھا کہ جی اٹھنے کی جو حقیقت ہے یا قیامت کی حقیقت جو ہے اس کو ثابت کیا جائے، پریکٹیکلی شاگردوں پر ظاہر کیا جائے کہ میں واقعی ہی زندہ ہوں، اپنے قول کے مطابق میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت بھی بننے جا رہی تھی، اور یہاں سے ایک بڑے مشن کا بھی آغاز ہونے والا تھا۔ اور دوسری بات کہ جب شاگرد طز بزب کا شکار تھے، ایمان جو تھا وہ متزلزل ہو رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں
डाउट्स भी आ रहे थे, जैसे हम तोमा को देखते हैं, तो शागिर्दों के ईमान को मजबूत करना भी एक मसीह का खास मकसद था। इसलिए भी मसीह जो था वो शागिर्दों पर जाहिर होना चाहता था कि शागिर्दों के ईमान को मजबूत किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर एक तो हुकूमती प्रेशर था, मजहबी प्रेशर था, और फिर उनकी अपनी जिंदगियां भी एक दांव पर लग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़कर, वो मसीह के पैरोकार थे, लेकिन उनके सामने ये हकीकत थी कि मसीह तो मर चुका है, उससे तो सलीब दिया जा चुका है। तो उनके लिए भी ज़रूरी था कि उनके ईमान को दोबारा मजबूत किया जाए, ताज़ा किया जाए। और तीसरी बात कि शागिर्दों को उस बड़े मिशन के लिए तैयार किया जाए जिसके लिए मसीह ने उन्हें चुना था। क्योंकि जैसे ही मसीह ने उन्हें चुना तो मसीह ने उनको कहा कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, लेकिन अपनी हयात में ये बहुत हद तक मुमकिन नहीं हुआ था। लेकिन मसीह अब उन्हें इसी जानिब लेकर जा रहा था कि जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना था, जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ छोड़ा, अब वक्त है कि उस मिशन को ब्रॉड किया जाए, उससे बढ़ाया जाए। और अब मेरे बाद, यानी मेरे जी उठने के बाद, मेरे आसमान पर चले जाने के बाद, शागिर्द जो हैं वो अब निकलेंगे, वो जाएंगे, और अब वो पूरी दुनिया को इंजील की मुरादी सुनाएंगे और उन्हें वो मसीह के पास लेकर आएंगे। तो ये एक बड़ा मिशन था जिसके लिए मसीह 40 दिन तक शागिर्दों पर ज़ाहिर होता रहा और 40 दिन तक उन्हें मजबूत करता रहा और उस मिशन के लिए उन्हें तैयार करता रहा। और इसमें चौथी बात यह है, इसलिए भी मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में वो कलीसिया की बुनियाद रखना चाहता था। जो कलीसिया शुरू होने वाली थी, जिसे हम आज कलीसिया कहते हैं, जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, उस वक्त खुदावंद चाहता था कि उस कलीसिया का आगाज़ किया जाए और उसके लिए शागिर्दों को ही तैयार किया जाए। और इसमें पांचवी बात यह है कि खुदा के निजात बख्श मंसूबे की भी तकमील को ज़ाहिर किया जाए कि खुदा किस तरह अब अपने लोगों को निजात देने वाला है और कैसे सलीब पर उसने उस बड़े निजात के मंसूबे को मुकम्मल किया है। तो ये कुछ सीधा बातें हैं इस सवाल के तनाजुर में कि क्यों मसीह जो है वो शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया और 5 पॉइंट उन्होंने शेयर किए हैं। 2 अहम बातें उनमें से, ताकि उनके ईमान को मजबूत किया जाए और दूसरी बात, उन्हें उस मिशन के लिए तैयार किया जाए, उस मिशन की तकमील की जाए जिसके लिए खुदावंद ने उन्हें चुना था। और बहुत सारी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं और यकीनन आप क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा तीसरा सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब, बड़ा अहम क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत के ताल्लुक़ से बहुत सारे ख्यालात गर्दिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी ख्याल करते हैं कि वो हुआ ही नहीं, उसकी जगह कोई और मसलूब हुआ। इसके अलावा जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो एक तासुर पैसे देकर ये भी देने की कोशिश की गई कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा कर ले गए। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से, यानी उसकी क़यामत के ताल्लुक़ से सबूत मौजूद हैं? ऐसे कौन से दलाइल हैं, ऐसे कौन से सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है? देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात कि मसीह की जो क़यामत है या मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये सिर्फ एक रूहानी तस्वर नहीं, बल्कि ये तारीख़ी और इलाहियाती हकीकत भी है। हम इसे अगर तारीख़ के आईने में देखें या तारीख़ की दूरबीन से देखें तो हमें तारीख़ी तौर पर भी क़यामतुल मसीह की हकीकत जो है हम उसको देख सकते हैं और ये एक रूहानी हकीकत तो है ही। लेकिन फिर भी इस तनाजुर में जब हम शवाहद की बात करते हैं तो जैसे आपने अर्ज पहले किया कि मसीह के जी उठने के शवाहद उसी वक्त मिटाने की कोशिश की गई, बाज़ पुरस की गई, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि जो शरा के आलिम थे या हुकूमती अहलकार थे वो इस बात से खौफजदा थे और एक वहाँ पर अजीब व गरीब शशोपंच की सिचुएशन जारी थी, क्योंकि वो जानते थे कि मसीह ने अपनी हयात में ये फरमाया कि मैं दोबारा ज़िंदा हो जाऊंगा, और वो ये नहीं चाहते थे। तो इब्लीस जो है वो शुरू से, पहले दिन से ही, जैसे ही मसीह जी उठा, पहले दिन से ही इस हकीकत को मिटाना चाहता है कि लोग यही तसव्वुर करें कि मसीह जी नहीं जी उठा। लेकिन हमारे पास
शवाहद मौजूद है, तारीखी तौर पर हमारे पास कलाम के शवाहद मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा हमारे पास सबूत है, सबसे बड़ा तो खुदा का कलाम ही है। लेकिन अगर हम शवाहद की बात करें, जो जीता जागता सबूत है, मेरे ख्याल से पहले नंबर पर वो मसीह की खाली कब्र ही है। आज भी वो कब्र खाली है और इस हकीकत को हम तारीखी एतबार से भी देख सकते हैं। यानी जब से उस कब्र से मसीह जी उठा है, वो कब्र आज भी वैसे ही मौजूद है। अगर हम यरूशलेम के अंदर देखें, बहुत सारे सयाह वहाँ पर उस खाली कब्र को देखने जाते हैं, तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि जिस हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो मर के जिंदा हुआ है, तो उसकी कब्र आज भी खाली है। उसकी कब्र के बाद आज भी तख्ती लगी है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि जी उठा है। तो इससे बड़ा सबूत मेरे ख्याल से जो पूरी दुनिया देख रही है, यानी ये हमारा दावा, सिर्फ हमारा दावा नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ज़ाहरी तौर पर उसकी कब्र आज भी मौजूद है। और मजे की बात यह है कि वो खाली भी है। तो ये सबसे बड़ा सबूत मेरे ख्याल से ये है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग मसीह के साथ थे, जैसे शागिर्द, जैसे ही मसीह जिंदा हुआ तो वो चंद औरतें कब्र पर आईं, उन्होंने मसीह को देखा, जाकर शागिर्दों को बताया। लेकिन उसके बाद एक पूरी डिटेल तफसील बयान की गई है कि कैसे कैसे मसीह जो है वो शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। पौलुस रसूल करंथियंस के नाम पहले ख़ात में 15वें बाब में बयान करता है कि वो उसके बाद फिर कैफा को यानी पतरस को दिखाई दिया, और उसके बाद 500 दूसरे लोगों को। तो कोई एक शख्स झूठ बोल सकता है, 10 लोग झूठ बोल सकते हैं, 500 लोग एक बड़ा नंबर है। और ये तादाद फिर बढ़ती चली गई और बहुत सारे लोगों ने मसीह को एक्सपीरियंस किया। फिर ऐसे शागिर्द जो उसी दिन अमावस की राह पर जा रहे थे, 2 शागिर्द, उन पर मसीह ज़ाहिर हुआ। और ऐसे ही हम मसीह के सिर्फ ज़हूर की बात नहीं करते, बल्कि उसके ज़िंदा होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ हम उसको भी देखते हैं कि शागिर्दों की ज़िंदगियाँ जो थी वो हैरत अंगेज तौर पर बदल गई। वही शागिर्द जो मसीह की मसलूबियत के वक्त डर गए, सहम गए, जाकर छुप गए, वही शागिर्द जब यीशु मसीह से मिले, यीशु मसीह के जी उठने को उन्होंने देखा, तो वही शागिर्द बदल गए, देरी से कलाम सुनाया। और हम देखते हैं अमाल की किताब में जब पतरस खड़ा हुआ 11 के साथ, और एक ही दिन में 3000 लोगों ने निजात पाई, तो उनकी अपनी जिंदगियां भी बदल गईं। और ये भी एक हैरत अंगेज काम है, और इस बात का सबूत है कि मसीह जो है वो जी उठा है। और उससे आगे हम देखते हैं कि मसीह के जी उठने का सबूत ये भी है कि इब्तदाई कलीसिया की बुनियाद रखी गई, और इब्तदाई कलीसिया की बुनियाद मसीह के जी उठने पर ही रखी गई। तो ये भी एक बड़ा सबूत है कि जिस कलीसिया की बुनियाद मसीह के जी उठने पर रखी गई, वो कलीसिया आज भी कायम है। मैं आप उसी कलीसिया का हिस्सा है, और आज हमारा ईमान भी यही है कि वो जिंदा है। और उसने खुद फरमाया कि मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। तो बाइबल मुकद्दस में मसीह के ये अल्फाज हैं। और एक और बात बड़ी ख़ास है कि उस वक्त यहूदी लोग सब्बत के दिन इबादत किया करते थे, लेकिन चूंकि मसीह जो था वो इतवार वाले दिन जी उठा, तो इस मुनासबत से मसीही लोगों ने इतवार वाले दिन इतवार के रोज प्रस्तिश शुरू की। और आज भी हम इतवार के रोज ही इबादत करते हैं। यानी ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रूफ है, सबूत है, बिल्कुल, क्योंकि वो इतवार का रोज था, इसलिए मसीही लोगों ने इसी प्रैक्टिस को आगे जारी रखा। और मुझे याद है पुराने वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर जुमे वाले दिन छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन हमारे चर्चेस इतवार को ही लगते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो इतवार को ही हम गिरजाघर जाया करते थे। गो के कुछ लोग छुट्टी वाले दिन को सामने रखते हुए जुमे वाले दिन इबादत करते थे, लेकिन बहुत सारे मसीही इतवार वाले दिन ही चर्च लगाते थे। तो ये भी एक बड़ा सबूत है कि मसीह जो है वो जिंदा है, और उसके ज़िंदा होने वाले दिन पर ही इबादत की रवायत भी डाली गई है। तो इसका नतीजा ये है, इलाही जो इसकी हकीकत यह है कि उसने मौत और गुनाह पर फतह हासिल की, और उसने हमारे लिए उम्मीद पैदा की है। अगर वो ज़िंदा है तो हमारे अंदर भी ये उम्मीद है कि हम भी ज़िंदा किए जाएंगे और हम भी उस अबदी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। तो ये चंद एक शवाहिद हैं
बाइबल मुकद्दस से या तारीख़ी एतबार से जो इस बात का बयान करते हैं कि मसीह वाकई ही ज़िंदा है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच पादरी साहब। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं और मसीह खुदावंद की क़ियामत के ताल्लुक़ से उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं, जिसमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो नंबर 1 पे उन्होंने शेयर की कि उसकी कब्र आज भी खाली है। जो भी उधर जाता है वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, जो बाएलानिया ये कह रही है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते, क़यामत ना होती, तो फिर इसका मसीही ईमान पर क्या असर होता? जी, मेरे ख्याल से ये सबसे अहम सवाल है और हमारे लिए या जितने मसीही लोग हैं उनके लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मसीह का जी उठना ये डायरेक्ट हमसे लिंक करता है। और इसी तनाजुर में पालूस रसूल ने करंथियंस के पहले ख़त में 15वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है। मैं चाहता हूँ कि हम इसे पढ़ें। 3री आयत में लिखा है, चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अगर हम 14वीं आयत आगे पढ़ें तो लिखा है, और अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा है। यानी पालूस इस हद तक गहरे तौर पर इसका बयान करता है कि अगर वो जी नहीं उठा तो फिर हमारा कलाम सुनाना, हमारा मुनादी करना और तुम्हारा ईमान रखना, ये सब बेकार है, बेफ़ायदा है, ये खोखला है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन वो खुदा के कलाम में से ही शवाहिद के साथ ये बात करता है कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक ही मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक ही जी उठा। और मसीही ईमान या जो इल्मुल मसीह है, क्रिस्टोलॉजी है, इसके 5 बुनियादी अकायद हैं और जिसमें पहला अकीदा है कि तजस्सुमुल मसीह, मसीह का इस दुनिया में आना, उसका जिस्म इख्तियार करना, फिर उसकी मसलूबियत और फिर उसकी क़ियामत, ये मसीही ईमान का बुनियादी हिस्सा है। यानी ये अगर हम इल्मुल मसीह की जब बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर ये क़ियामत का अकीदा मौजूद है और फिर सऊदल मसीह और फिर उसकी जो दोबारा हतमी आमद होने वाली है। तो ये मसीही ईमान का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन अगर वो जी ना उठता, अगर उसकी क़ियामत ना होती तो इसका क्या इम्पैक्ट होता? इस सवाल के तनाजुर में पहली बात यह है कि मसीही ईमान बेबुनियाद हो जाता, जैसा कि पौलुस ने यहाँ पर बयान किया है कि हमारा ईमान लाना जो है वो बेफ़ायदा जाता, उसका कोई फ़ायदा ना होता और इन दी एंड हमारे हाथ खाली रह जाते और हम भी दूसरों की तरह ना उम्मीद ही हो जाते। और जैसे सदियों से चलता आ रहा था, जैसे नबी पैगंबर आते थे और आखिरकार वो मरते और दफन हो जाते और कोई उम्मीद पीछे बाकी ना रहती, तो हमारा ईमान जो है वो बेबुनियाद हो जाता। और दूसरी इसमें बात यह है कि निजात की उम्मीद ख़त्म हो जाती, क्योंकि मसीह ने हमसे वादा किया है कि अगर वो जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। क्योंकि हमने निजात इसलिए नहीं पाई कि एक दिन हम मरे और बस उसके बाद हमारा वजूद बाकी ना रहे, बल्कि हमने निजात इसलिए पाई कि जब हम मरे तो वो हमें दोबारा जिंदा करेगा, हमें अपने साथ अबदी तौर पर रखेगा। और तीसरी बात कि रसूलों की मुनादी जो है वो बेमायनी हो जाती। जिस तरह कलीसिया ने ग्रो किया, चर्चिस कायम हुए, कलीसियाएँ बनी, लोगों ने मसीह पर ईमान रखा, तो उनकी जो मुनादी थी वो बेमायनी हो जाती, उसमें असर बाकी ना रहता। तो चौथी बात इसमें यह है कि मौत पर जो फतह है उसकी उम्मीद बाकी ना रहती। आज हम बड़े फ़ख्र से जब मसीह की खाली कब्र का ऐलान करते हैं या जिक्र करते हैं तो ये हमारा फ़ख्र जाता रहता, इसमें हमारा फ़ख्र बाकी ना रहता। तो हमें मौत पर फतह मिली है। अगर मसीह ना जी उठता तो इसका मतलब यह है कि वो भी मौत का लुकमा हो गया, लेकिन उसने मौत पर फतह पाई। और उस पौलुस ने फिर बरमला कहा कि आ मौत तेरी फतह कहाँ गई और तेरा डंग कहाँ गया, क्योंकि वो जानता था कि मसीह जी उठा है और मसीह ने उस आखिरी और पिछले दुश्मन को शिकस्त दी है। और 5वीं बात इसमें यह है कि यीशु की उलूहियत पर सवाल
उठाया जाता कि क्या वाकई ही यीशु में अलूहियत पाई जाती थी अगर वो जी ना उठता। और इब्तदाई कलीसिया का तो सलाम भी यही था, वो एक दूसरे को जब मिलते तो वो यही कहते थे कि मसीह जी उठा है, और जवाब देने वाला कहता कि हाँ फिल हकीकत मसीह जी उठा है। तो आप देख सकते हैं कि मसीह का जी उठना किस तरह, एक तो इस कितने वो इस ईमान में पुख्ता थे और कितना ज़्यादा मसीह का जी उठना या मसीह की क़ियामत जो थी उनकी ज़िंदगियों में रच बस चुकी थी कि वो अपने सलाम में भी यही कहते थे कि मसीह जी उठा है। और इसी क़ियामत ने उन्हें ये दलेरी बख्शी, उन्हें ये ईमान बख्शा और उनकी मुनादी को पुर असर किया। और उसी ईमान और दलेरी की वजह से शायद आज हम भी मसीह के पैरोकार हैं, यहाँ पर बैठकर हम मसीह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतना ज़रूरी है, अगर वो जी ना उठता तो हम ना उम्मीद होते, तो शायद हम आज के इस दिन को इस तरह सेलिब्रेट ना कर रहे हो। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत जवाब खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया और बड़ी खूबसूरत बातें, चंद एक पॉइंट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए कि अगर क़यामत ना होती, मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो उसका मसीही ईमान पर क्या असर होता। नंबर 1 खुदा के खादिम ने शेयर किया कि हमारी मुनादी बेफ़ायदा होती। नंबर 2 हमारा ईमान बेफ़ायदा होता। नंबर 3 हम ना उम्मीद होते, औरों की तरह हमारे पास भी कोई उम्मीद ना होती। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि अब मसीह की मुनादी बड़े बड़े गुनहगारों को, डाकुओं को, जानियों को बदल के रख देती है। मसीह पर ईमान लाना बेफ़ायदा नहीं बल्कि वो फ़ायदा देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबब से मौत और कब्र को शिकस्त होगी और हम सब के लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खुल गए हैं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जिसने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आप अपने गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो आइए खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आए, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएँ। इस ईद क़यामतुल मसीह पर अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए, इस खूबसूरत दिन में आपने हमारी इस टॉपिक पर रहनुमाई फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेट टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेट टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।